Well done, my students. Today's lecture is on electric flux. Flux. This word is not new for you. In 11th class, we used to study the velocity of efflux. Torricelli's theorem. Torricelli theorem was an application of Bernoulli's theorem. There was an orifice, there was a small hole through which water came out. That velocity with which water came out was called velocity of efflux, that word. Now it is electric flux. In case of 10th class, you have studied magnetic flux. Flux means something coming out of other thing, something coming out. तो हम ये एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा. Topic is electric flux. Actually the word is flux. फ्लक्स का कोई मीनिंग आपसे पूछे बच्चों, कुछ वैसे कुछ बाहर निकलना. क्या निकलना? जैसे 11th क्लास में हमने पढ़ा था, ये टैंक था, है ना, एक छोटा सा छेद था. इस छेद को ओरिफिस बोला जाता था. Orifice, very small hole, pinhole. Water was coming out. This velocity with which water came out is called velocity of efflux. This was called velocity of efflux. This velocity was, if this distance was h dash, and this distance was h, this velocity was under root 2gh. This was velocity of a flux. 10th क्लास में था बच्चों कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं लाइंस, साउथ की तरफ चलती हैं. Yes, they are coming. Suppose the structure is like this. This is south pole. This is an area. इस given area में से कितनी magnetic lines of force cross कर रही हैं? Condition ये होती है, this area must be normal. This area must be normal to direction of magnetic lines of force. That was called magnetic flux. Now total number of magnetic lines of force crossing through a given area, provided that this area must be normal to direction of magnetic lines of force. अब है ये word बच्चों. This was called magnetic flux in 10th class. Now it is electric flux. हमने ये तो पढ़ लिया कि हर पॉजिटिव चार्ज में से लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ दौड़ती हैं, निकलती जा रही हैं लाइंस, और नेगेटिव की तरफ भागती हैं, like this. ये फिर एक एरिया बना दिया. इस एरिया में से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? शर्त ये है बच्चों कि क्या शर्त है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मस्ट बी नॉर्मल टू दैट एरिया. दिस एरिया इज वर्टिकल, लाइंस आर क्रॉसिंग दिस. दिस एरिया इज वर्टिकल, लाइंस आर क्रॉसिंग दिस. टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन एरिया. गोइंग टू डिफाइन अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा किसी एरिया में से डिफाइन होती है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया इज डिफाइंड एज total number of electric lines of force crossing through that area, provided that area must be normal to direction of line of force. Area must be perpendicular to direction of electric line of force. यहाँ बोलते हैं area must be perpendicular to direction of magnetic line of force. And this flux, this is called electric flux. Electric flux is measured by E into area. This is actually dot product of E. This is area. एरिया के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाते ही आप अमेज्ड मत होना, सरप्राइज्ड मत होना. इन रियलिटी एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट इन सम प्रॉब्लम्स इट कैन बी टेकन एज वेक्टर. और वेक्टर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? एरिया वेक्टर की एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है आउटवर्ड परपेंडिकुलर, उस एरिया के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ. एक्चुअली और एक्सप्लेन करेंगे कि ये एरिया वेक्टर है. दिस इज मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर.
this is unit vector. This gives the direction of area vector, क्योंकि any vector is equal to its magnitude into unit vector. Its full name is, इसका जो पूरा नाम होता है OUNV, वो से बनता है आउटवर्ड, क्योंकि हमेशा ये बाहर रहेगा. U means unit, means इसका magnitude 1 unit रहेगा. N means perpendicular, normal, perpendicular to that area. V means vector. V means vector. OUNV, outward, unit, normal, vector. तो ये हमेशा बाहर की ओर होएगा. यूनिट में मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, और वेक्टर तो ये है. इसका पूरा नाम ये होगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और नंबर ऑफ लाइंस. लाइट में जो होती है बच्चों वो लिमिनियस फ्लक्स होती है. लिमिनियस फ्लक्स. नंबर ऑफ लाइट रेज, सपोज ये बल्ब है, बल्ब ये लाइट रेज दे रहा है इस एरिया में से. हाउ मेनी लाइट रेज आर गोइंग प्रोवाइडेड दैट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, दिस इज लिमिनियस फ्लक्स. कुछ में से कुछ निकलना. मैग्नेट है तो मैग्नेट में से मैग्नेटिक लाइंस, चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक लाइंस. अगर बल्ब या कोई भी सोर्स है तो ये नंबर ऑफ लाइट रेज. एक अच्छी सी फिल्म का शो जब छूटता है, बहुत सारे लोग निकलते जा रहे हैं, तो फिजिक्स के आदमी जब फिल्म देखने जाते हैं तो ये कहते हैं आज फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि निकलते ही जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए निकलने की जो डायरेक्शन है बच्चों वो नॉर्मल होती है. जैसे ये गेट है, इस गेट में से निकलते ही जाएं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट फ्लक्स. सो व्हाट इज फ्लक्स? वेरी सिंपल, वेरी मच अंडरस्टैंडेबल. कुछ में से कुछ निकलना, लेकिन निकलने की डायरेक्शन नॉर्मल होनी चाहिए. एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट. मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट, लाइक दिस. तो अब डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. डेफिनेशन एज पर एज आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. ये एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है. नंबर एक स्केलर क्वांटिटी होती है. वैसे भी मैंने बोला कि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर क्वांटिटी होती है. सपोज करो ये एरिया 20 मीटर स्क्वायर है और इसमें से मैंने देखा 1000 लाइंस आर पासिंग. सो नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास हो रही है? 1000. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई, ये 1000 टोटल नंबर ऑफ लाइंस. कंडीशन नहीं भूलना कि ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक line of force must be perpendicular to that area. एरिया कितना है? इतना. तो पूरे एरिया में से कितनी फ्लक्स जाती है, कितनी लाइंस जाती हैं, वो फ्लक्स होती है. और यूनिट एरिया में से देखते हैं 20 मीटर स्क्वायर एरिया में से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है बच्चों. और वो कितना है? 1000. तो यूनिट एरिया में से कितनी जाएंगी? 1000 यूनिटी मेथड अपॉन 20, दिस इज 50. और यूनिट एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं वो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन तो अभी भी है, वो ई कहलाता है, जो आज तक हमने डिफाइन नहीं किया था. मैं फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया, वो ई कहलाता है. यूनिट एरिया में से जितनी लाइंस जाती हैं, कितनी जा रही है? 50 लाइंस. 50 लाइंस पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया मतलब पर मीटर स्क्वायर. वो 50 ई की वैल्यू है, इंटू एरिया कितना है? 20. तो टोटल फ्लक्स कितनी है बच्चों? 1000. तो ई की नई डेफिनेशन निकल गई. ई की एक डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज फोर्स बाय यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स. एक इसका फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों कि क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. मैग्नीट्यूड ऐसे और डायरेक्शन के लिए धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते थे. और आज ई की एक नई डेफिनेशन पढ़ ली, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस passing through unit area, passing through that area, that full area, that is electric flux, and passing through unit area, that is electric intensity. इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और नाम भी लिया जाता है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. ये भी उसी ई का नाम है
जिसको आप ई को वेक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नो डाउट। एरिया वेक्टर जब उनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। माइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एज इट इज डॉट प्रोडक्ट। E dot S is called electric flux and it is E S cos theta। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E S cos थीटा। आपसे पूछा जाए कि थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? वही वाला OUNV, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर एरिया वेक्टर भी बोल देंगे या आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोल देंगे, के बीच का एंगल है। वो एंगल क्लियर करेंगे, आपको अभी समझ आएगा। फिलहाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन एरिया। जितनी लाइंस का नंबर है, क्योंकि ये नंबर है इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसका प्रॉपर और फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम, और इसकी यूनिट 1 सेकेंड में पता लग जाएगा आपको। दिस इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया एंड इट इज मेजर्ड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड S। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। E इज ए वेक्टर क्वांटिटी। E की यूनिट आपको याद होगी न्यूटन पर कूलम, एरिया के मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एरिया मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ना हो, जैसे ये एरिया है और सपोज करो पॉजिटिव चार्ज में से ये लाइंस ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये एरिया है, दिस इज एरिया इज इक्वल टू S। देन इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। खुद E परपेंडिकुलर नहीं है एरिया के तो चलो कोई बात नहीं, इसका एक ऐसा कंपोनेंट ड्रॉ कर लेंगे E cos थीटा। दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। खुद E परपेंडिकुलर नहीं था एरिया के तो चलो कोई बात नहीं, E का वो कंपोनेंट ले लेंगे जो इस एरिया के नॉर्मल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी वो वाला कंपोनेंट जो नॉर्मल है, ये वाला कंपोनेंट इनटू एरिया। दिस इज अगेन E S cos थीटा, दिस इज अगेन E डॉट S। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला E डॉट S आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर एरिया रेगुलर लेंथ और ब्रेड्थ का यूनिफॉर्म एरिया नहीं है तो क्या होगा? इफ एरिया इज इररेगुलर, टेढ़ा मेढ़ा एरिया हो, फिक्स लेंथ ब्रेड्थ या फिक्स शेप नहीं हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं? वेरी सिंपल। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा एरिया है उल्टा सीधा जिसकी फिक्स शेप नहीं है, तो सपोज करेंगे इसका एक एलिमेंट सपोज कर देंगे ये छोटा सा टुकड़ा। पूरा एरिया तो अब भी S है, S एरिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, वो है DS, ये वाला एरिया, और ये हमारा चार्ज पार्टिकल सपोज करो, दिस इज चार्ज पार्टिकल प्लस Q चार्ज। हम ये देखेंगे कि यहाँ पे E की डायरेक्शन कोई पूछे, E की डायरेक्शन का वही पुराना मेथड, जहाँ पे भी E की डायरेक्शन पता करनी हो, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देते हैं। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को जिधर भी रिपेल करता है वो E की डायरेक्शन। और एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं वो हमने आपको बताया कि थोड़े से एरिया में से थोड़ी सी लाइंस जाएंगी तो छोटी सी फ्लक्स होगी। फ्लक्स का सिंबल होता है फाई E, स्मॉल फ्लक्स है तो D फाई E, जैसे DL स्मॉल लेंथ, DM स्मॉल मास, D फाई E स्मॉल फ्लक्स। दिस विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट DS। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसके इक्वल होती है आपको याद है, एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर एंड दिस इज यूनिट वेक्टर OUNV। इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। आउटवर्ड यूनिट, यूनिट मैंने मैग्नीट्यूड 1, नॉर्मल, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, V फॉर वेक्टर, OUNV शॉर्ट में बोला करेंगे OUNV। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब आप इंटीग्रेशन करोगे d फाई का इंटीग्रेशन फाई E, d फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई E, dl का l, dt का t, d फाई का फाई E, यू नो, और इधर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे
E डॉट डी एस, इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन E डॉट n डी एस। क्यों? कोई भी डी एस वेक्टर इज इक्वल टू n डी एस। दिस कैन बी रिटन एज दिस, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज E डी एस cos थीटा, A dot B, A B cos theta. This is the final formula. This is the final. This is also final. There is no difference between this, and this. ये पहली बार आपने सुना है। इसका क्या मीनिंग होता है? This has meaning integration over a closed surface. Integration over a closed surface. ये जो गोल लगा दिया closed surface, तो फ्लक्स हमेशा क्लोज सरफेस पे ही डिफाइन होती है। सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड वन, ओपन नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाइनल फार्मूला आफ्टर ऑल आप लोगों ने कर लिया। ई डॉट एन डी एस, ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर बोल दो, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड ओ यू एन बी आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ई एंड एन कैप, ई एंड एन कैप के बीच में भी एंगल थीटा बोल दोगे तो चलेगा। इसका एन कैप ड्रॉ करके दिखाएंगे। ई तो आपने ड्रॉ कर दिया, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, ये वाला चार्ज यूनिट चार्ज को प्लस को उधर रिपेल करेगा ई की डायरेक्शन। एन कैप कैसे खींचते हैं? ए से डी एस में से बीचों बीच एक डॉटेड लाइन खींचते हैं, डॉटेड लाइन। इस लाइन के बाहर की ओर नॉर्मल, बाहर की ओर ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करो जो इसके परपेंडिकुलर और बाहर हो, यानी ये एंगल 90 होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। ये दिस मस्ट बी 90, तभी पता लगेगा इसके नॉर्मल। अब देखो ई वेक्टर की डायरेक्शन राइट में, एन की राइट में, ई और एन के बीच में जो थीटा हो गया वो 0 डिग्री हो गया। जब भी दो वेक्टर एक ही साइड होते हैं तो उनके बीच में एंगल 0, दे आर पैरेलल वेक्टर्स। ई और एन कैप के बीच में थीटा एंगल 0 हो गया। फाइनल फार्मूला सारे सिंपल्स के साथ, ये हर बार 0 होना जरूरी नहीं है, अलग अलग एंगल हो सकता है। जैसे ये सपोज करो कोई छोटा सा वेक्टर है, छोटा सा एरिया है, ये चार्ज और ये डी एस वेक्टर हो गया, ये चार्ज है। आपसे कोई पूछ ले क्या ये डी एस है, ये यहाँ पे कोई पूछ ले कि ई की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एक ही तरीका ई की डायरेक्शन निकालने का, धीरे से ये चार्ज पुट किया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये वाला केवल चार्ज इस वाले को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जिधर भी रिपेल करेगा, दिस लाइन मस्ट बी स्ट्रेट, वो ई की डायरेक्शन होती है। एन कैप कैसे ड्रॉ करते हैं? एन कैप का मतलब ओ यू एन बी कैसे ड्रॉ करते हैं? डी एस के बीचों बीच एक डॉटेड लाइन खींचते हैं और इस लाइन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, परपेंडिकुलर इधर भी होगा लेकिन हमें तो बाहर की ओर ड्रॉ करना है। ये दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। कोई इसको एरिया वेक्टर बोल देगा, कोई ओ यू एन बी बोल देगा, कोई यूनिट वेक्टर बोल देगा, सब ठीक है। मतलब ये एंगल बिल्कुल 90 होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। अब देखो ई वेक्टर ये रहा, एन ये रहा, एन कैप ये रहा, ये तो यूनिट वेक्टर पुट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट किया था, ये थीटा है, दिस थीटा इज लेस देन 90, 30, 60 व्हाटएवर इट मे बी, इसके बाहर की दिस इज एन कैप। मेथड खींचने का क्या है? उस डीएस के बीचों बीच एक लाइन, डॉटेड लाइन, लाइन के बाहर परपेंडिकुलर, इसका नाम ही बाहर है, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन cos थीटा। If cos theta is positive, flux positive. Cos theta is negative, flux negative. Cos theta is 0, flux is 0. Just it is a similar case to that of case of work in 11th class. Formula for work, mechanical work, F dot S, Fs cos theta. सबको याद होगा वर्क का फॉर्मूला F dot S, force dot displacement, Fs cos theta. Theta was the angle between force and displacement. If cos theta 0 तो वर्क 0, then theta will be 90. कुल्ली वाला एग्जाम्पल करते थे, कुल्ली अपने सिर पे कोई वजन उठा के चलता था तो वर्क 0 होता था। cos theta नेगेटिव तो वर्क नेगेटिव, cos theta पॉजिटिव तो वर्क पॉजिटिव। सिमिलर वे if cos theta is 0 then flux will be 0. Flux is 0, no electric line of force is passing. What is flux? Total number of electric lines crossing through that particular area. And if crossing through unit area आ जाए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाती है माइनस। और तीनों केसेस करेंगे, कब फ्लक्स 0 होती है, कब फ्लक्स पॉजिटिव होती है, कब फ्लक्स नेगेटिव होती है। सो इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन थीटा और कोस थीटा पे डिपेंड करती है। नंबर वन केस, इफ थीटा इज लेस देन 0, लेस देन 90, acute, if angle is acute one, then cos theta will be positive, and if cos theta is positive, then flux is equal to integration E ds cos theta, flux will be positive. If cos theta is positive, flux is positive. ड्रॉ करके देखें एग्जांपल, आप ड्रॉ करते हैं। अगर हम इस एरिया को ऐसे बना लें, ये, फिर आपसे ये पूछेगा कोई ई की डायरेक्शन बताओ, यहाँ से हम ई की डायरेक्शन खींचेंगे। इस वाले चार्ज के कारण ई की डायरेक्शन अगर आप खींचना चाहते हैं तो ई इसी लाइन को स्ट्रेट बढ़ा देंगे। ये धीरे से नेट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया यहाँ पे, ये वाला प्लस इस वाले प्लस को जिधर भी रिपेल करता है वो ई की डायरेक्शन। बीचों बीच एक डॉटेड लाइन खींचनी है। इस लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन बाहर की ओर परपेंडिकुलर, ये हो गया 90 का एंगल परपेंडिकुलर शो करते हुए। एन कैप ये हो गया, ई और एन कैप के बीच में थीटा एंगल हो गया, थीटा इज लेस देन 90। या तो ऐसे ड्रॉ करके दिखाएंगे, या सिंपल ये ड्रॉ करेंगे। छोटा सा एरिया क्या होगा, डी एस। सिमिलर वे यहाँ पे कोई पूछे आपसे क्या कि ई की डायरेक्शन कैसे, धीरे से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे। ये वाला चार्ज इसको जिधर भी रिपेल करता है वो ई की डायरेक्शन। बीचों बीच एक डॉटेड लाइन, और लाइन के बाहर की और नॉर्मल, ये एन कैप भी इधर, ई भी इधर। सो थीटा बिटवीन एन कैप एंड ई इज 0 is again less than 90, flux is positive. So here flux positive, here flux positive के दो डायग्राम आपको समझ आ गए। फ्लक्स नेगेटिव कब होगी, ये पहला केस था। दूसरा केस, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, then cos theta will be negative, then flux will also be negative flux। नेगेटिव फ्लक्स कैसे, हम एग्जांपल शो करेंगे। अंदर नेगेटिव चार्ज रखा हो, क्लोज सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज रखा हो, फिर उसी तरह छोटा सा एरिया ds अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे पूछेंगे कि ई की डायरेक्शन क्या है। ई की डायरेक्शन निकालने का एक ही तरीका मैं इतने दिनों से बता रहा हूँ। धीरे से यूनिट पॉजिटिव यहाँ प्लेस किया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये वाला नेगेटिव इसको इधर खींचेगा, इधर, तो ई की डायरेक्शन होगी अंदर, और बीचों बीच एक डॉटेड लाइन, ये लाइन, इस लाइन के बाहर की ओर नॉर्मल, ये बाहर की ओर, और ये नॉर्मल। तो आपको दिख रहा है एन कैप बाहर, ई अंदर, तो थीटा कितना हो गया, देखो यहाँ बना देता हूँ, एन कैप बाहर, ई अंदर, दिस इज थीटा एंड दिस इज 180, एंड यू नो cos 180 इज नेगेटिव, सो फ्लक्स विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का आपको फार्मूला आ गया, E into ds into cos theta, and theta is 180, flux will be negative because cos 180 is -1, flux will be negative। नेगेटिव फ्लक्स का डायग्राम, ये दोनों डायग्राम्स पॉजिटिव फ्लक्स के हैं। और अब जीरो फ्लक्स, नेगेटिव का वैसे कोई मीनिंग नहीं होता। इनवर्ड फ्लक्स, याद, इनवर्ड है ई की डायरेक्शन, तो इनवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। बंद सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स पॉजिटिव होती है, बंद सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन बदल जाती है इनकी, इसलिए फ्लक्स नेगेटिव होगी। और फ्लक्स जीरो कब होगी, जब वही वाला कोस थीटा 90 हो जाएगा। अगर थीटा 90 होगा तो कोस 90 विल बी 0। थीटा लेस देन 90 पढ़ लिया, ग्रेटर देन 90 पढ़ लिया, तो तीसरा केस करेंगे, इफ थीटा इज 90 then cos theta will be 0, then electric flux will be 0. 0 means no line of force is passing through that surface, crossing through that surface, no line of force is passing। So what happens, इसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे कि ये सर्कल है बंद, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन की पॉजिटिव चार्ज इधर रखा हुआ है,
इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे पास हो रही है तो इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा ये ऐसे है, बाहर की ओर होगा आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। तो एन कैप बाहर, ई इधर, ई आपको साफ साफ दिख रहा है, ई इधर है, ई इधर है। तो एन कैप जो ड्रॉ करेंगे वो ऐसे होगा बाहर की ओर, और बाहर की ओर हम 3 डायमेंशनल में कैसे दिखाना पसंद करेंगे, हम कहेंगे ds ये है और ये बाहर की ओर नॉर्मल, ये एन कैप। तो आपको क्लियर दिख रहा है ई की डायरेक्शन ये रही, एन कैप की ये रही, दिस इज आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर and angle between outward unit normal vector is 90 degree. If it is 90 degree, the total flux is integration E ds cos 90 0. Flux 0 means no electric line of force is passing. Whereas in reality no electric line of force is passing. देखने में बच्चों आपको ये लगता है 1 2 3 लाइन्स पास हो रही है, नो, all the lines of force they are passing above the circle or below the circle, not through the circle, like this. If circle is like this, circle ring, and positive charge is here, all the lines of force will pass through it. If circle is like this, circle खड़ा नहीं हो, पड़ा हुआ हो और पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो, तो लाइन्स ऊपर से भी निकल जाएंगी, नीचे से भी निकल जाएंगी, इसके अंदर से नहीं जाएंगी। इसके अंदर से जब कब जाएंगी, जब सर्कल ऐसे हो। सर्कल जब ऐसे होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ऑल द लाइन्स ऑफ फोर्स दे आर पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। लेकिन सर्कल पड़ा है, खड़ा नहीं है ना, ये पड़ा हुआ है गोल सर्कल। तो पड़ा हुआ है तो लाइन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, ऊपर से चली गई, नीचे से भी चली गई, अंदर से कभी लाइन्स ऐसे नहीं जाते, जाएं और मुड़ के ऐसे चले जाएं, ऐसे नहीं जाती कभी। तो इसलिए अंदर से एक भी लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं हो रही। You will say flux is 0. What is flux? Nothing. Total number of electric lines of force crossing through that particular area, provided that area must be normal, perpendicular to direction of electric line of force. तो तीनों केसेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। Flux is scalar or vector? Of course, it is a dot product. Every dot product is always scalar quantity. इसलिए dot product का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। आपको ध्यान रखना है, एरिया को वेक्टर कैसे ट्रीट किया गया ये भी पता लग गया। इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी फ्लक्स पे करेंगे तो और भी क्लियर होगा आपको। तो फिलहाल वो न्यूमेरिकल जो हम चल रहे थे हमारे, उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ न्यूमेरिकल हो गए थे, कुछ रह गए थे, चलिए करते। This is the question number 9. Question number 9 of these particular notes 2AB4. आपके पास स्टेटमेंट सबके पास हैं, बाई चांस किसी के पास नहीं पहुंची होंगी तो मुझे इन्फॉर्म कर देगा, तो उसके पास भी स्टेटमेंट पहुंच जाएंगी। 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून्स A and B, एक हीलियम दूसरा हीलियम फिल्ड बैलून A and B, दिस इज A, दिस इज B। एयर फील्ड, गैस फील्ड, हीलियम फील्ड। तो जो ही बैलून में हीलियम भर दी जाती है तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसको क्या किया, इसको एक वेट के साथ, मास के साथ बांध दिया। ये थ्रेड है, अब ये ऊपर जाना तो चाह रहे हैं, जा नहीं पाएंगे, जा नहीं पाए। अब थ्रस्ट जो ऊपर ले जाने वाली है, दिस ऑफ थ्रस्ट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस वेट। This is what weight, and mass is given. How much mass is there? 5 gram. This is 5 gram. ग्राम के हम बना लेंगे किलोग्राम। This is mass. They are counterbalanced. बिल्कुल बैलेंसिंग हो गई। आपको गिवन है, ये बिल्कुल फिगर भी पूरी गिवन है। ये 1 मीटर है, ये 0.3 मीटर है बच्चों। फिगर बिल्कुल गिवन है 0.3 मीटर। A, B, C like this. This is D. And these balloons are having same charge. प्लस क्यों को इधर रिपेल करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कूलम्स लो। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेमीज थ्योरम लगा देंगे बाय, जैसे पहले बताया था बच्चों, लेमीज थ्योरम किसमें, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ACD। इधर की ओर फोर्स है,
फोर्स अपॉन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड तो AC है बच्चों, ये ऊपर की ओर कौन है, अपथ्रस्ट फोर्स, तो इसका अपोजिट साइड CD दिस। अब ये ऊपर जा रहा था, ऊपर कौन ले जा रहा है, दोनों अपथ्रस्ट वाले फोर्स U अपर साइड में, अपथ्रस्ट फोर्स अपर साइड में, और नीचे बैलेंस कौन कर रहा है, वेट। यू कैन राइट दैट 2U will be equal to mg, U will be mg by 2. This is known because mass is known, G is 9.8. This is known, so you can say that U is known, and this is force, Coulomb's force, K Q upon distance square. Distance is 0.6 point, तो ये चार्ज क्या हुआ है, ये भी चार्ज क्या हुआ, तो 0.6. AC is nothing but 0.3, AC is 0.3, and this is what upthrust is nothing but mg by 2, वेट का आधा है ये. CD can be solved by Pythagoras, 1 square minus 0.3 square. Everything is known to you except Q will be known because it is Q square, Q will be known. K is Coulomb's constant, 9 into power 9, mass is known, everything except Q is known, and the answer is, आंसर आपको बता दिया, प्लस माइनस 5.6 into 10 to minus 7 Coulomb. This is the answer. This is charge. बिल्कुल वही लैमिज थ्योरम, थोड़ा सा बदल दिया. आपके पास बैलून थे तो आप थ्रस्ट फोर्स लग रही है, U भी ऊपर है, U भी ऊपर है, U plus U is equal to mg, 2U is equal to mg, U is equal to mg by 2 means U is known because mass is known, G 9.8 upon 2, U is known. Now लैमिज थ्योरम, I'm repeating, फोर्स इधर है तो अपोजिट साइड है ना, उसके अपोजिट क्या है, AC, फोर्स अपॉन अपोजिट साइड. अब थ्रस्ट ऊपर है तो वर्टिकली इसको जो अपोज कर रहा है, ये वर्टिकली अप तो ये वर्टिकली डाउन, CD. अब थ्रस्ट में नोन है mg by 2 से, अब थ्रस्ट की वैल्यू mg by 2, CD पाइथागोरस से, AC हमें पता है 0.3, फोर्स कूलम्ब्स फोर्स K केवल Q2 बाय डिस्टेंस किया तो Q का स्केल आ जाएगा, Q सॉल्व करने से ये आंसर आ जाएगा. आंसर विल बी नेक्स्ट. ऐसे न्यूमेरिकल्स हम आगे बढ़ाते रहेंगे, आप ट्राई करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, थ्योरी भी न्यूमेरिकल्स भी. हैव ए नाइस टाइम.